Okay, huh? We will start. Up to the point, we have gone through the various remedies which are available on the breach of a contract. कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो जो जो अलग अलग रेमेडीज अवेलेबल है वो रेमेडीज हमने अब तक क्या किए वहां पे डिस्कस किए हुए इन द सेंस नंबर वन रेमेडी वी हैव डिस्कस्ड वाज कौन सी पहली रेमेडी डिस्कस की थी हमने वहां पे डैमेजेस वाली रेमेडी हमने पहले क्या की थी डिस्कस की है उसको हमने कल पूरा कंप्लीट किया था हाँ डैमेजेस में हमने क्या क्या डिस्कस किया देखो सबसे पहले वेरी कॉमन रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द डैमेजेस damages is a pecuniary compensation, pecuniary loss which we can recover from the party for the breach of a contract. Damages may be of a different type. Okay, ordinary damages which are also considered as a direct damages or natural damages. They are recoverable as of a right. Okay, breach हुआ है तो हम लोग natural damages आसानी से recover कर सकते हैं. And how to calculate the amount of the natural damages? Okay, the breach price and contract price. At the date of the contract, rice was 70 rupees per kg. At the date of the breach, the rice become 100 rupees kg. So the damages as of natural damages I can recover is a 30 rupees per kg. Okay. Then second type of damages we have discussed was the special damages. Which arises out of some special profit expectations. But the special damages can be recovered by the party only if it has made known to the other party. Okay, that if there is a breach of a contract, I'm going to suffer this and that special damages. Hardly versus Baxendley's case we have discussed for that. Then third type of damages, remote damages. That means they are indirect damages. This happened, that's why that happened, and that's why that happened, and so these damages I have suffered. So no damages you can recover which in the form of indirect or remote damages. Then third one damages, remote damages not recoverable. Fourth one damages we have discussed is that one that is vindictive damages, which is also called as exemplary damages, which are also called as punitive damages. They are almost in the form of a punishment. They are a very heavy amount. Okay, they are available only in the two cases. Okay, breach of promise to marry, and even though there is a sufficient amount in the account of the customer, still when banker make the bouncing of the check, dishonor of the check, the customer can recover from the banker exemplary damages for the loss of reputation. Then next fourth one damages we have discussed was nominal damages. Now in this type of a situation on the breach of a contract, actually plaintiff suffer no damage, but still just to prove in the court that plaintiff was a right and defendant has made a breach of a contract, this kind of a damages are awarded. Okay, they are considered as a which one damages? They are considered as a nominal damages. They may be rupees 1 or 2 or it may be only 50 paisa etc. Then next one damages we have discussed was damages for the deterioration of the goods due to the delay. Goods was delayed and therefore whatever damages you have suffered, you can recover that particular damages as well from the goods carrier mostly. Then next type we have discussed was that difference between penalty and damages. In England, there is a specifically made difference between the penalty and damages. A reasonable amount which is prefixed for the breach of a contract is considered as a liquidated damages. And unreasonable exorbitant amount which is decided on the breach of a contract will be considered as a penalty. In England, they have put out that you can recover the liquidated damages, but you cannot recover the penalty. In India, as such, this difference has not been made in between liquidated damages and penalty. But we have put out that if you have prefixed the amount of the damages, then you cannot recover more amount than that prefixed damages. And suppose this happened that your damage was lesser and prefixed amount is a more, then you will get the damages which are a lesser. In all, जितना आपका नुकसान हुआ उतना ही आपको मिलेगा. ये Indian law है. There is no specific difference between the penalty and liquidated damages under the Indian law. Then next one point what we have discussed was that one. We have gone through all aspects of the damages के फिर हमने ऐसे क्या कर लिए वहाँ पे सारे aspects discuss कर लिए थे. Now the second remedy for the breach of contract we are going to see on page 1.86. That second remedy we are going to see is a rescission of the contract. Second remedy कौन सी discuss करें? Other remedies में पहली remedy तो हमने discuss कर ली. पहली remedy क्या थी बोलो वहाँ पे? First remedy was a
damages, जो हमने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया. Now second remedy is the rescission of the contract. Second remedy क्या बोलो? Rescission of a contract. See, when a contract is broken by one party contract को क्या कर रही है? Breach कर रही है. The other party may treat the contract as rescinded. Remember our painter? Painter is ready and agreed to paint the picture, but you are not giving the time to the painter now. So what he can do is that one, from his side, the contract will be discharged. He will get an option to avoid that particular contract, to cancel that particular contract. Okay, हाँ. तो अगर एक पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए रेडी है और दूसरी पार्टी उसको कॉपरेट ही नहीं कर रही है, हाँ, in such a case he is absorbed of all his obligation under the contract. हाँ, उसके जो भी obligations है वो क्या हो जाएंगे? एब्सॉर्ब हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे. एंड इनफैक्ट सामने वाले पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया है, इसके लिए वो कंपनसेशन मांग सकता है. हाँ, ही इज एंटाइटल्ड टू द कंपनसेशन फॉर एनी डैमेजेस दैट माइट हैव बीन सफर्ड. उसको जो भी डैमेजेस हुए उसके लिए इनफैक्ट क्या रिकवर कर सकता है? बोलो वो कंपनसेशन वहां पे रिकवर कर सकता है. व्हाट द पॉइंट. हाँ, नेक्स्ट वन देखो, उसके लिए एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं वहां पे डिस्कस करते हैं. हाँ, एग्जांपल इज example given here is that one, when A promises B to deliver 50 bags of the cement on a certain date. A क्या promise करता है बोलो? कुछ 50 bags of the wheat deliver करने के लिए क्या कर रहा है? Promise कर रहा है. B agrees to pay the amount on the receipt of the goods. B ने क्या promise किया बोलो? मुझे goods मिल जाएंगे तब उसके बाद में मैं आपको पेमेंट कर दूंगा. अगर अब A ने goods से deliver नहीं किए तो B को पेमेंट देने की जरूरत ही नहीं है. तो B कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए सूट फाइल करेगा? रेसेशन के लिए, क्योंकि ए ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया वहां पे. राइट. हाँ, ए फेल्ड टू डिलीवर द सीमेंट ऑन द अपॉइंटेड डे, बी डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी टू पे द प्राइस. हाँ, बी ऑटोमेटिकली क्या होना बोलो वहां पे? डिस्चार्ज हो जाएगा लायबिलिटी से. सो वेरी सिंपल पॉइंट हैज बीन देयर. हाँ, रेसेशन के लिए सूट फाइल कब कर सकते हो? देखो, एक पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार है, दूसरी पार्टी ब्रीच कर रही है. हाँ, तो जो पार्टी इनोसेंट पार्टी है, रेडी टू परफॉर्म है, वो किसके लिए सूट फाइल कर सकती है? वो पार्टी परफॉर्म ही नहीं कर रही ना, तो मैं क्या करूं? तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करके दो? कैंसिल करके दो. इसके लिए वो किस चीज के लिए सूट फाइल कर सकती है बोलो? रेसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो सूट फाइल वहां पे कर सकती है. व्हाट द पॉइंट? रेसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ नेक्स्ट वन क्या जाता है? देखो, नेक्स्ट वन रेमेडी व्हिच इज देयर, दैट इज अ क्वांटम मेरिट रेमेडी इज बीन देयर. हाँ, नेक्स्ट वन रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सी बोलो? क्वांटम मेरिट. हाँ, नाउ दिस वर्ड क्वांटम मेरिट मीन्स as much as earned. हाँ, ये क्या मीन करता है? देखो, क्वांटम मेरिट वर्ड, क्वांटम मेरिट स्टैंड्स फॉर as much as earned. हाँ, इसका मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, हाँ, उस दिन, हाँ, तक जितना मैंने अर्न किया है, हाँ, उतना मुझे क्या करो? पे करो. दैट इज क्या कंसिडर किया जाता है? क्वांटम मेरिट. हाँ, बट ना इस क्वांटम मेरिट के बहुत सारे अलग अलग रूल्स है. हाँ, उसको हम लोग क्या करते हैं वहां पे समझ के लेते हैं, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं वहां पे. हाँ, व्हाट इज द पॉइंट वी आर गोइंग टू सी? इज द क्वांटम मेरिट इज द पॉइंट वी आर गोइंग टू सी. आई विल एक्सप्लेन यू. हाँ, देखो, एक आईटी कंपनी में, हाँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, समझो, कंसिडर करो एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ. हाँ, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर and I am been appointed in one IT company. हाँ, एक IT कंपनी में मुझे क्या किया? एक पोस्ट पे एनालिस्ट वगैरह व्हाटएवर, एक पोस्ट पे मुझे क्या किया वहां पे? अपॉइंट किया. हाँ, माय सैलरी इन दैट पर्टिकुलर कंपनी वाज डिसाइडेड. हाँ, 10,000 रुपीज पर मंथ. मेरी सैलरी उस कंपनी में कितनी रुपए डिसाइड हो गई थी बोलो? 10,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मेरी डिसाइड हो गई थी. हाँ, मुझे उन्होंने 1 ईयर के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिया है. हाउ मच ईयर? द कंपनी हैज गिवन मी एन अपॉइंटमेंट लेटर. कंपनी हैज गिवन मी द अपॉइंटमेंट लेटर फॉर द 1 ईयर. 1 साल के लिए मुझे कंपनी ने अपॉइंटमेंट लेटर दिया. ठीक है. सो हाउ मच टाइम द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू बी परफॉर्म? 1 ईयर. व्हाट इज द सैलरी? 10,000 रुपीज पर मंथ. हाँ, अब ना कंपनी ने मुझे और वो सैलरी मुझे वो कैसे पे करने वाले थे? 1 ईयर की सैलरी एट अ टाइम पे करने वाले थे आफ्टर 1 ईयर कंप्लीशन. हाँ, इसका मतलब जब मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तब मुझे वो 1,20,000 रुपए क्या करने वाले थे? साथ में मेरे हाथ में देने वाले थे आफ्टर द 12 मंथ कंप्लीशन ऑफ द जॉब. नाउ व्हाट हैपेंस, इन द मीन टाइम उन्होंने ना 3 महीने जॉब करने के बाद मुझे जॉब से निकाल दिया. विद इन 3 मंथ ही उन्होंने मुझे क्या कर दिया बोलो? जॉब से निकाल दिया. विद इन 3 मंथ उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया. इसका मतलब
उन्होंने क्या किया बोलो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। Then what they have done is that the company has made the breach of a contract. हाँ, now see friends, हाँ, मैं किसके लिए सूट फाइल करूंगी, वो किस चीज के लिए सूट फाइल करूंगी बोलो, क्वांटम मेरिट के लिए मैं सूट फाइल करूंगी। हाँ, इसका मतलब कंपनी मुझे वो 3 महीने की सैलरी नहीं दे रही है जितना मैंने जॉब किया वहां पे। हाँ, तो मैं क्वांटम मेरिट मतलब कितने रुपए के लिए सूट फाइल करूंगी बोलो, एज मच एज अर्नड। हाँ, एंड हाउ मच आई हैव अर्न ऑफ द 3 मंथ जॉब, व्हाट आई हैव अर्न इज दैट I have 30,000 rupees per month का 10,000 rupees सैलरी। इस हिसाब से 30,000 रुपए होते हैं, उस 30,000 के लिए मैं सूट फाइल करूंगी। किस चीज की सूट फाइल करूंगी बोलो, वहां पे क्वांटम मेरिट की सूट वहां पे फाइल करूंगी। आयदन में हाँ, सो जब आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, हाँ, तब तक आपने जितना अर्न किया है उसके लिए आप सूट फाइल करते हो, तो उसको क्या बोला जाता है, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। वेट, बहुत सारी चीजें इसमें। हाँ, यहाँ पे खत्म नहीं होती है स्टोरी। आगे देखो, समझो ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कैसे और अराइज होता है। इन्होंने ना, इस कंपनी ने इस इंजीनियर को, इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक पूरे प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किया था। देन मेरा मतलब ऐसा सेवरेबल जॉब नहीं था कि मंथ टू मंथ आपको पेमेंट मिलेगा, हाँ, मंथली 10,000 रुपीज सैलरी, ऐसा पेमेंट डिसाइडेड नहीं था। एक प्रोजेक्ट बनाना था पूरा। हाँ, और उस पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए सेम, हाँ, उसको कितने पीरियड के लिए अपॉइंट किया था वहां पे, 1 ईयर के लिए अपॉइंट किया था। हाँ, एंड वापस सेम सैलरी वाज फॉर दैट प्रोजेक्ट, इट वाज नॉट लाइक दैट 1 मंथ का 1,10,000 रुपीज ऐसा सैलरी डिसाइडेड नहीं थे। सैलरी वाज डिसाइडेड इन लमसम। इन लमसम सैलरी क्या डिसाइडेड थी बोलो, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसको मिलेंगे 1,20,000 रुपीज। हाँ, सो हियर the contract was not severable. He was appointed for one bunch. And what is that particular bunch is that to completion of one project. एक पूरा प्रोजेक्ट उसको दिया था, वो पूरा प्रोजेक्ट उसको 12 महीनों के अंदर अंदर खत्म करना है, 1 ईयर के अंदर अंदर खत्म करना है। And on the completion of project, he will be given the salary for entire project, that is 1,20,000 rupees salary he will be given. जानना है आपको अभी। हाँ, now what happens, see, हाँ, यहाँ पे वापस ऐसे हुआ, कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ना 3 मंथ के बाद में निकाल दिया। किसने निकाल दिया, ध्यान में वापस सबको, 3 मंथ के बाद कंपनी ने उसको निकाल दिया। अब ना यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क कैसे अराइज होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा नहीं है बोलो, ये कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल नहीं है। हाँ, तो फिर भी क्या ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाँ, वो 3 महीने की सैलरी, जितना उसने काम किया है उतनी सैलरी मांग सकता है क्या? तो लॉ कहता है कि जब पार्टी एट डिफॉल्ट, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रही है और इनोसेंट पार्टी है, हाँ, जिसका नुकसान हुआ है, तो इनोसेंट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल है तो भी, इनोसेंट पार्टी इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट इज सेवरेबल, मतलब सेपरेबल, मतलब पहला वाला एग्जांपल, सैलरी डिसाइडेड कैसे की पर मंथ 10,000, तो वो तो सीधी सी बात है कि 3 महीने काम किया उसको 3,000 रुपए दे दो, इशू खत्म हो गया वहां पे। हाँ, बट कॉन्ट्रैक्ट अगर सेवरेबल है भी और अगर कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल नहीं है, हाँ, जैसे कि हमारा ये सेकेंड वाला एग्जांपल जिसमें उसको पेमेंट कैसे मिलने वाला था बोलो, लमसम पेमेंट फॉर द कंप्लीशन ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट। हाँ, बट उसकी कोई गलती नहीं है ना, वो तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए रेडी था ना वहां पे। हाँ, कंपनी ने उसको निकाला हुआ है ना 3 मंथ्स में। हाँ, तो फिर क्या ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाँ, इस 30,000 रुपए के लिए सूट फाइल कर सकता है उसने जितना काम किया? तो यस, ही कैन रिकवर। हाँ, तो इनोसेंट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल है तो भी, और अगर कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल नहीं है तो भी अपना पैसा क्या कर सकती है बोलो, रिकवर कर सकती है। देन मेरा इनोसेंट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल है तो भी, और अगर कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल नहीं है तो भी अपना पैसा क्या कर सकती है, रिकवर कर सकती है, क्योंकि उसकी गलती है ना। He was not at a breach side, okay? He was an innocent party. So even though the terms contract is severable, that is separable, or even though the contract is not separable, the innocent party can recover as much as earned, can recover the quantum merit. आया धर में आपको वहाँ पे। अब इस एग्जाम्पल को हमें थोड़ा टर्न करना है। हाँ, सब कुछ स्टोरी सेम रहेगी, बट हमें बस क्या करना है, पार्टी एट ब्रिज बदलनी है। पार्टी एट ब्रिज कैसे बदलेंगे देखो, सेम। हाँ, थोड़ा सा एग्जांपल को ध्यान दो। हाँ, सेम सिचुएशन इज देयर, वन सॉफ्टवेयर कंपनी इज देयर, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। हाँ, इस सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, हाँ, जॉब पे रख के लिया। हाँ, पहले वाले एग्जांपल में जाता है, पहले वाले एग्जांपल के हिसाब से उसको क्या किया बोलो, सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट पे। हाँ,
10,000 रुपीज पर मंथ के जॉब पे उसको क्या किया, अपॉइंट किया। हाँ, और अब ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, उसको 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपॉइंट किया, बट सेवरेबल ना, ही वाज नॉट ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एक नॉर्मल जॉब जैसा जॉब है, हर महीने काम करना है उसको, बट उसको सैलरी कब मिलने वाली है, 1 साल के बाद। सैलरी कितनी मिलने वाली है उसको, 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 रुपीज सैलरी मिलने वाली। सेम एग्जाम्पल जो हमने पहले देखा एज इट इज। हाँ, बट यहाँ पे ना ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, ये 3 महीने बाद जॉब छोड़ रहा है। मतलब पार्टी एट ब्रीच कौन है बोलो, कंपनी नहीं है पार्टी एट ब्रीच। हाँ, पार्टी एट ब्रीच कौन है बोलो, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ, 3 मंथ के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करके कॉन्ट्रैक्ट जॉब क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कैसे अराइज होता है, क्या ये पर्सन हाँ ये पैसे रिकवर कर सकता है क्या, क्या ये पर्सन ये पैसे रिकवर कर सकता है क्या, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, ये इनोसेंट पार्टी नहीं है। हाँ, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या बोलो, पार्टी एट ब्रीच है वहां पे। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि क्या ये रिकवर कर सकता है, तो इसका आंसर है कि हाँ, कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल है। यहाँ पे उसकी सैलरी कैसे डिसाइडेड है, देखो पर मंथ फॉर्म में डिसाइडेड है ना, तो यस वो ये पैसे क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। आया ध्यान में आपको वहां पे। हाँ, लेकिन अगर ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल आता है, सेकेंड वाला एग्जाम्पल मतलब क्या बोलो, लाइक ही वाज अपॉइंटेड ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एंटायर प्रोजेक्ट को उसको अपॉइंट किया। हाँ, और प्रोजेक्ट पे उसने बीच में 3 महीने में जॉब छोड़ दिया, तो देखो ना कंपनी को कितना प्रॉब्लम होगा, और कोई इंसान ढूंढो, उसको नए से सब कुछ सारी चीजें बताओ। हाँ, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बंच है, हाँ कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल नहीं है, हाँ तो फिर इन दैट केस क्या होगा, ध्यान में आपको, इन दैट केस ना वो ये जो 30,000 रुपए है, हाँ वो रिकवर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जॉब छोड़ के जा रहा है, कंपनी उसको नहीं निकाल रही है। जॉब कौन छोड़ के जा रहा है बोलो, वो खुद जॉब छोड़ के जा रहा है। सो वो ये पैसे क्या नहीं कर सकता बोलो, रिकवर नहीं कर सकता। तो ध्यान में रहा, क्वांटम मेरिट में हाँ इनोसेंट पार्टी अगर सूट को क्वांटम मेरिट फाइल कर रही है, हाँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल है तो भी, और अगर कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल नहीं है तो भी हाँ वो पैसे क्या किए जा सकते हैं, रिकवर किए जा सकते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है। हाँ, लेकिन अगर पार्टी एट डिफॉल्ट क्वांटम मेरिट की सूट फाइल कर रही है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुद जॉब छोड़ रहा है, हाँ तो पार्टी एट डिफॉल्ट क्वांटम मेरिट की सूट फाइल कर रही है, तो वो डिपेंड है कि कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल है या कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल नहीं है। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि 10,000 रुपीज पर मंथ सैलरी, तो हाँ वो 30,000 रुपए बोल सकते हैं कि मैंने जितना काम किया उसका पैसा मुझे दो। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट था लमसम अमाउंट के लिए था, एक एंटायर प्रोजेक्ट के लिए वो अपॉइंटेड था, और वो प्रोजेक्ट बीच में छोड़ के जाता है, तो वो अपने 30,000 रुपए रिकवर नहीं कर सकता। हाँ, सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वांटम मेरिट। रीड आउट करते हैं थोड़ा सा, आज रीड आउट कर लेना तो ध्यान में आ जाएगा आपको और डिटेल में, विद ऑल एग्जांपल्स एंड ऑल। हाँ, ओके देखो, when one party has rendered service to another in circumstance which indicate an understanding between them that it is to be paid for although no particular remuneration has been fixed, the law will infer a promise to pay। ये वाला सेंटेंस याद भी रखने की जरूरत है, वेयर से लेकर पे तक का सेंटेंस भूल जाना ये। हाँ, डायरेक्टली शुरू कहाँ से करो रीड आउट करने के लिए, क्वांटम मेरिट से रीड आउट करना शुरू कर दो। हाँ, quantum merit, that is as much as the party doing the service has deserved, it cover a case where a party injured by the breach had at the time of breach done a part, हाँ क्या किया देखो, उसने अपना पार्ट परफॉर्म किया है, but not all the work which he is bound to do under the contract। हाँ, तो पूरा काम उसने किया हुआ नहीं है। हाँ, और फिर भी वो compensation चाहता है and seeks to compensated for the value हाँ of the work done for the application of this doctrine। Two conditions should be fulfilled। कितने condition fulfill होने चाहिए बोलो, two conditions must be fulfilled। हाँ, number one देखो, it is only available if the original contract has been discharged। हाँ, and number two, the claim must be brought by a party at no default। then मैंने ना contract severable है तो भी और contract non severable है तो भी क्वांटम मेरिट का अमाउंट रिकवर किया जा सकता है। कब किया जा सकता है बोलो, वहां पे अगर वो क्लेम किसने किया बोलो, पार्टी एट नॉट डिफॉल्ट। हाँ, पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट मतलब वो क्लेम किसने किया बोलो, इनोसेंट पार्टी ने वो क्लेम वहां पे किया हुआ है। हाँ, तो ही वो रिकवर कर सकती है। ठीक, देखो द ऑब्जेक्ट ऑफ अलाउिंग द क्लेम ऑफ क्वांटम मेरिट इज टू रिकम्पनसेट द पार्टी और फॉर द वैल्यू ऑफ अ वर्क व्हिच ही हैज डन। damages are compensatory in the nature while quantum merit क्या बोलो, वर्ड याद रखना, restitutory मतलब
आपको आपके ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचाने के लिए है। हाँ, it is but reasonable compensation awarded on application of a contract to remunerate when a person order from a wine merchant 12 bottle of the whiskey and 2 brand, and purchaser accept them, the purchaser must pay reasonable price for the brandy। ध्यान में आ रहा है क्या दिया वहां पे? When a person order for a wine merchant 12 bottle of a whiskey and 2 of the ब्रांड एंड द परचेसर एक्सेप्ट देम। 12 बॉटल मंगाए थे, उसमें से 2 ही ब्रांड के आए। हाँ, और आपने एक्सेप्ट किए, तो एक्सेप्ट किए मतलब आपको पे करना पड़ेगा, जितना लिया उसके लिए आप क्या करो वहां पे पे करो, ऐसे कंसिडर किया गया वहां पे। हाँ, देखो क्या गया, द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेस इन द फॉलोइंग केसेस। हाँ, कब कब क्वांटम मेरिट का क्लेम अराइज होता है? देखो, नंबर 1 when the agreement is discovered to be void, हाँ, और when contract become void। याद है वो पाकिस्तानी वाला एग्जांपल आपको? हाँ, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और जिस दिन माल भेजना था उसके पहले पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर ब्रेकआउट हो गया। हाँ, तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? बोलो, void कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना वहां पे अब। हाँ, तो void कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। हाँ, तो एज मच एज अर्नड, अगर आपको कुछ एडवांस अमाउंट आपने दी है तो अमाउंट आपको रिकवर करने का अधिकार है वहां पे। हाँ, या फिर 4 कंप्यूटर सेंड किए थे और बाकी 15 बाकी थे, तो उस 4 कंप्यूटर का पेमेंट आप क्या कर सकते हो? रिकवर कर सकते हो। हाँ, नंबर 2 देखो, ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है नंबर 2। हाँ, व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू ग्रेटिट्यूअसली, मतलब वो श्रीखंड आपके घर आया, आपने वो श्रीखंड खाया। हाँ, खाया इसका मतलब वो कोई फ्री आपको देने वाला था क्या श्रीखंड? वहां पे ग्रेटिट्यूअसली देने का इंटेंशन था क्या? ग्रेटिट्यूअस मतलब फ्री, तो ग्रेटिट्यूअस देने का इंटेंशन नहीं था ना उसका, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? बोलो यहाँ पे, क्या वो अपने पैसे रिकवर कर सकता है श्रीखंड वाला सेल्समैन? तो यस, सेल्समैन अपने पैसे क्या कर सकता है? रिकवर कर सकता है। तो व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू ग्रेटिट्यूअसली, तो वो भी पैसे अंडर क्वांटम मेरिट रिकवर किए जा सकते हैं। हाँ, देन थर्ड पॉइंट क्या था? देखो, when there is an express or implied contract to render the service, but there is no agreement as to the remuneration। हाँ, जैसे ना मैंने आपको जॉब पे रख के लिया और आपको वो अभी तक पगार डिसाइडेड नहीं है। हाँ, और इन द मीन टाइम आपको बीच में निकाल दिया, तो पगार भले ही डिसाइडेड नहीं है, लेकिन आपने जितना काम मेरे लिए किया है उसके लिए रिजनेबल रेम्यूनरेशन, हाँ, मुझे आपको देना पड़ेगा। सैलरी अभी डिसाइडेड नहीं थी, तो इन जनरल उस टाइप के जॉब में जो भी सैलरी होती है, वो जो भी रिजनेबल अमाउंट है, वो रिजनेबल अमाउंट मुझे आपको क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी वहां पे। हाँ, देन नेक्स्ट वन देखो, पेंटर वाला एग्जांपल टाइप में आ सकता है। हाँ, when one party abandon or refuse to perform the contract। हाँ, एक पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए रेडी है, बट दूसरी पार्टी अबैंडन कर रही है। हाँ, तो जो इनोसेंट पार्टी है उसने जितना काम किया है उसका पैसा वो क्या कर सकता है? रिकवर कर सकता है। हाँ, और अगर वो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुद जॉब छोड़ रहा है, इसका मतलब पार्टी एट डिफॉल्ट सूट फाइल करना चाहती है, तो पार्टी एट डिफॉल्ट भी सूट फाइल कर सकती है। कब? अगर कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल है तो। हाँ, मतलब वो सैलरी 10,000 पर मंथ डिसाइडेड है, वो किसी प्रोजेक्ट पे अपॉइंटेड नहीं था, एक सेपरेबल कॉन्ट्रैक्ट पे था। मेरा कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, सेपरेबल है। हाँ, एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ अ पार्ट परफॉर्मेंस। when contract is indivisible है, हाँ, for a lump sum is completely performed but badly, the person who has performed the contract can claim the lump sum। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट किससे बोलो वहां पे? इनडिविजिबल है। हाँ, तो वहां पे क्या हो सकता है? द पार्टी हु कंप्लीटली परफॉर्म, he can recover the claim of a lump sum amount, but other party can make a deduction for the bad work। हाँ, जितना गलत काम हुआ है उतना पैसा वजह करके जितना काम कंप्लीट किया है उसका पैसा वो क्या कर सकता है? रिकवर कर सकता है, अगर उसने अपना पार्ट कंप्लीटली परफॉर्म किया है वहां पे। हाँ, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आपको सारे। हाँ, एक्स रॉन्गफुली रिवोक्ड वाइज एजेंसी, हाँ, बिफोर वाई कुड कंप्लीट हिज ड्यूटीज। एक्स का कौन था? देखो, वाई एजेंट था। हाँ, वाई अपना काम कंप्लीट करने के पहले पहले एक्स ने वाई की एजेंसी क्या कर दी? वहां पे रिवोक कर दी, हेड। वाई कुड रिकवर क्वांटम मेरिट। वाई ने अपना जितना काम किया है ना, फॉर द वर्क ही हैज डन एंड द एक्सपेंसेस ही हैज इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज। हाँ, अपना काम करते हुए वाई एजेंट ने अब तक जितना काम कंप्लीट किया है उसके लिए वो पैसे क्या कर सकता है? रिकवर कर सकता है। सिंपल है एकदम। हाँ, दूसरा एग्जांपल देखो,
A agrees to deliver 100 bales of the cotton to the B. A B को क्या deliver करने के लिए agree करता है बोलो 100 bales of a cotton to the B at a price of 1000 per bale. The cotton bale were to be delivered in the 2 installment of 50 lakhs. Cotton bale कैसे deliver करने थे देखो 2 installment में 50 each. देखो आगे क्या है. A delivered the first installment but failed to supply the second. Of course B को उस रिमेनिंग 50 का पैसा देना पड़ेगा जो उसने एक्सेप्ट किया है. कैसे देना था देखो 2 इंस्टॉलमेंट में 100 बिल भेजने थे 50 ईच. तो ए ने एक इंस्टॉलमेंट भेज दी बट दूसरी फेल हो गया भेजने से, तो बी को क्या वो पहले लिए हुए 50 बैग्स का पैसा पे करना पड़ेगा. तो यस क्वांटम मेरिट एज मच एज अर्नड, जितना आपने लिया है उसके लिए आप क्या करो वहां पे करो. ये वाला रूल वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा. So second remedy for the breach of contract थी recession. Then third remedy क्या थी हमने डिस्कस किया अभी quantum merit, that is as much as earned. Now fourth remedy for the breach of contract which is there is a suit for the specific performance of a contract. हम लोगों के लैंग्वेज में ना जो हम लोग लॉ फील्ड से डील करते हैं ना, हमारे लिए ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट मतलब ना सबसे बड़ी रेमेडी होती है. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में हम लोग क्या बोलते हैं पता है ना, हमें डैमेजेस चाहिए ना हमें कोई अल्टरनेटिव रेमेडी चाहिए. हमें जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड है वही कंप्लीट कर